मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान। यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। हम अगले इवेंट के लिए तैयार रहे, जो कि छोटे बच्चे LKG, HKG और स्टैंडर्ड फर्स्ट के बच्चे हैं, और वो अरेबिक नशीद बिस्मिल्लाह के ऊपर अपना जो है टैलेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो वो अपना टैलेंट परफॉर्म करना शुरू करें, उसके पहले भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का आप हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाएंगे, और जब वो अपना इवेंट कंप्लीट करे तब भी आप उसका हौसला बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum, children. Let me tell you a special secret, a heavenly secret, to make your day the best of days, to make your day magical. All you need to do is say Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The sun shines up high, it is a new day. You're starting it with thanking Him in your way. As we wash our face, Bismillah, Bismillah, make your life shine with grace, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Look at all He's given to you in your life, a mother and father to help you survive. Never let them down, Bismillah, Bismillah, don't give them a frown, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. If you're in need, raise your hands up in dua. Speak to Him with your heart, help me please, oh Allah. He listens when you say Bismillah, Bismillah, watch your worries fly away, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. When you want to hear His words of
a surah every day. Bismillah, Bismillah. When you sit down to pray. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In the morning when we wake. Bismillah, Bismillah. And every step we take. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। हालांकि इस उम्र में स्टेज पे आना, इतने लोगों को सामने बैठे हुए देखना और अपनी कला को प्रदर्शित करना, ये कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेष कलाएं अल्लाह पाक ने जो है वो दे करके रखी है। हालांकि उसे उजागर करने का मौका और ऐसा जरिया हो, कोई स्टेज हमें मिल जाए तो निस्संदेह ऐसे बहुत सारा टैलेंट हमारे यहाँ संस्था में है। और आगे जो स्पीच है, विद्यार्थी है बेरा मोहम्मद और ही इज फ्रॉम गुजराती मीडियम और वो स्पीच देने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर के ऊपर, हु इज वी कैन से दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसने जो संविधान बनाया उसके ऊपर आज ये देश जो है वो चल रहा है। तो उस व्यक्ति को हम कैसे याद रखें, हालांकि उसको बुलाया जा रहा है। जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, वाकई बलिदान दिया, जिसने अपने परिवार की फिक्र नहीं की, जिसने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, जिसने अपने भविष्य की फिक्र नहीं की, ऐसे अनेक लोगों ने इस देश के लिए अपने खून को बहा दिया, खून की नदियां बहा दी। और इस देश को लेवल पे लाने के लिए, एक मजबूती देने के लिए जो मजबूत संविधान की जरूरत थी, उस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। और उसके ऊपर आपको वक्तव्य देने जा रहे हैं बेरा मोहम्मद करके विद्यार्थी है गुजराती मीडियम के, उसका मैं स्वागत करता हूं स्टेज पर। बेरा मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदरणीय ट्रस्टी साहब, उपस्थित मेहमानगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। साथियों, आज हम गणतंत्र दिन मना रहे हैं। आज के दिन राष्ट्र प्रेम की बातें की जा रही है। उन सभी लोगों को याद किया जा रहा है जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ और एक लोकतांत्रिक देश बना। लेकिन आज के दिन उस महान व्यक्ति को भूल जाते हैं या किसी तगूत को भुला दिया जाता है जिसने इस दिन का इतिहास रचा, जिसने इस देश का कानून बनाया, जिसने भाईचारे का संदेश दिया, जिसने उच्च नीच का विरोध किया, जिसने जाति धर्म से उठकर समानता का हक दिया। यही वो महान शख्सियत है जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से जानते हैं। साथियों, बाबा साहेब को बुलाने का उचित कारण स्पष्ट है। कई मनुवादी सोच के संगठन में लोग हमारे दिमाग से बाबा साहेब को निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का दिल और दिमाग में रहना एकता और समानता को मजबूत बनाता है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालें तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू गांव के दलित परिवार में हुआ था। साथियों, आज तक हमें बातें बताई जाती है कि 10वें फेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बना, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अंबानी करोड़पति बना तथा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन हमें यह किसी ने नहीं बताया कि क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश का संविधान निर्माता बना। लेकिन बाबा साहेब के बारे में दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि ने बाबा साहेब पर गर्व होने की बात कही। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मरने के बाद भी जीना हो तो यह काम जरूर कर जाना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, लिखने लायक कुछ कर जाना। कोई स्कूल में सीख कर चला गया, कोई सिखा के चला गया। स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ लिख कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे भारत देश की तकदीर लिख कर चले गए। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह बने, गुलामों को
इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी नारे के साथ 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको अलविदा कर दिया। जय हिंद, जय भारत। इस बच्चे की स्पीच को सुनने के बाद हमने ये सोचा, कोशिश की, क्या बोला उन्होंने कि गरीब परिवार में जन्म लिया और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद बहुत सारी मुसीबतों के बाद उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वहां तक देश का जो ऊंचा संविधान पद है उसको उसने निर्माण कर दिया। तो अमीर के घर में जन्म लेना या गरीब के घर में जन्म लेना, राजमहल में जन्म लेना या फुटपाथ पे जन्म लेना, व्यक्ति की संस्कृति और संस्कार जो होते हैं ना वो उसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि राजयोग में जन्म ले लिया, बंगले में जन्म ले लिया, लेकिन कर्म बुरे रहे, संस्कृति और संस्कार की हत्या कर दी, तो चाहे अमीर के घर में जन्म लिया तो भी उसको एक दिन नौबत आएगी कि रास्ते पे आना पड़ेगा। लेकिन एक रास्ते पे जन्मा हुआ बच्चा, ऐसे तो अनेक दृष्टांत है। इसका एक और भी दृष्टांत आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा एक क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जो झोपड़पट्टी में रह करके उसने अपनी जिंदगी को बना दिया। अब्दुल कलाम साहब ने भी देश के राष्ट्रपति बनके दुनिया को सलाम करने पर मजबूर कर दिया। तो आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि पढ़ना जरूरी है। चाहे आप राजमहल में हो, चाहे आप मिडिल क्लास में हो, चाहे फुटपाथ में हो, और याद रखना सिर्फ पढ़ाई नहीं, भीमराव अंबेडकर के साथ पढ़ाई के साथ संस्कृति और संस्कार भी थे। अब्दुल कलाम और मोहम्मद कैफ के पास पढ़ाई के साथ संस्कृति और संस्कार भी थे। यदि सिर्फ पढ़ाई रही और संस्कृति और संस्कार की हत्या कर दी तो वो पढ़ाई आपको विनाश के रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन यदि पढ़ाई के साथ संस्कृति और संस्कार को दो हाथ बना करके पाल लिया तो मेरे शब्द को याद रखो, ये दुनिया आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाएगी। अगला परफॉर्मेंस हम देखेंगे केजी 1st, 2nd, 3rd, 5th का नन्ना मुन्ना राही हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका हौसला आप बढ़ाएंगे। आई डू जस्ट वेलकम the students for the नन्ना मुन्ना राही हूं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ,
बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। माशाअल्लाह, इन छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने बेहतरीन अंदाज से अपना परफॉर्म पेश किया। हज़रात गिरामी, 26 जनवरी 1950 को तारीख़ हिंद में हमेशा याद रखा जाएगा, जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने मिलकर दस्तूर हिंद को मुरतब किया। दस्तूर हिंद में, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि इस दस्तूर और इस संविधान को बनाने का मकसद 4 बातों को हासिल करना था। नंबर 1 जस्टिस, नंबर 2 लिबर्टी, नंबर 3 इक्वालिटी और नंबर 4 फर्टर्निटी। यानी ये दस्तूर हिंदुस्तान में इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और इत्तिहाद और एकता का सरचश्मा साबित होगा। लेकिन अफसोस, आज इस दस्तूर को तार तार करने की कोशिश की जा रही है और अलग नजरिए से मुल्क की शांति और भाईचारे में तफरका पैदा करने की नापाक साजिश की जा रही है। अमन और शांति के दुश्मन मुल्क की एकता को तोड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसको ख़त्म करके लोगों में जहर घोल दें। लेकिन ए अमन और शांति के दुश्मन, सुन लो, हिंदुस्तान की सुबह अगर मौज़िन की अजान से होती है तो शाम मंदिर की आरती और घंटों से होती है। हिंदुस्तान की सुबह अगर गुरुद्वार के बांग से होती है तो शाम चर्च के घंटों से होती है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। ये साथ अगर हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो आइए इसी उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जामिया काशिफुल उलूम के दर्जे हिफ्ज के तालिब इल्म अजीज़म मोहम्मद साहिल मोबी सल्लमहू को के मौसूफ आए और हिंदुस्तान और संविधान के उन्वान पर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। काबिल सद एहतराम हजरात उलमाए किराम, टीचर हजरात, मेहमानान इज़ाम, तलबाए किराम, आज आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में काबिल दीदो समाअत भी है और लाई के सद एहतराम भी। आज के दिन को हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। आज के दिन हर इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी खुशी से झूमता नजर आएगा। आज के दिन हर बाग का फूल खुशबू बिखेरता नजर आएगा। आज हर खुशी व मशर्रत के हर बाग की शाखों पर बुलबुल तराना गाती नजर आएगी। आज खुशी व मसरत के मेरे मुल्क की गली गुचा जुलूस मनाता नजर आएगा। और क्यों न आए हजरात, जब
तारीख उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के नक्शे में जो मुल्क सोने की चिड़िया की हैसियत रखता हो, जमाने के चोर और लुटेरों की नजर बद का शिकार हो गया और नापाक तन के गोरे मन के काले नापाक साजिश को परवान चढ़ाने वाले मेरे वतन अजीज पर धोखे से काबिज हो गए। तो लहजा लहजा दिन वो रात गोया हर वक्त हर जगह जुल्म का अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। न हम हिंदुस्तानियों की इज्जत महफूज थी, न हमारी तहजीब महफूज थी, न हमारा कल्चर न तमद्दुन महफूज था। हालांकि जो मुल्क अपनी सादगी और खूबी से मशहूर था, वो मुल्क की ऐसी हालत कर दी गई, हर वक्त चीखो पुकार, जुल्म, बर्बरियत और इंसानियत की तार तारियां नजर आ रही थी। यकीनन हजरात, हुकूमत दौरे अंग्रेज ने हम हिंदुस्तानियों पर ऐसे जुल्म ढाए हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े जालिम भी सुनकर शर्मा जाए। हुकूमत दौरे अंग्रेज ने अपनी ताकत और कुव्वत का जौहर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यारो सीना चौड़ा हो जाता है ये बात सोचकर कि इतनी जालिम हुकूमत के खिलाफ इस मुल्क की मिट्टी ने वो नौजवान पैदा किए जिन्होंने अपने मादर वतन भारत की इस्मत के खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। न दिन देखा न रात देखी इसी जुस्तजू में लगे रहे, न दिन देखा न रात देखी इसी जुस्तजू में लगे रहे। आजादी के मस्तानों बस इसी मुल्क की आजादी के लिए मरते रहे। हम गाए या न गाए, लेकिन आज भी दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, चांदनी चौक, जलियांवाला बाग, काले पानी की जेलें, मैसूर की गलियां उन दीवानों के गुन गाती है जिन्होंने अपने मुल्क के खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। हजरात, जब जालिम के जुल्म की इंतहा हुई, आजादी के मस्तानों की कुर्बानियां रंग लाई, तो मेरा वतन अजीज बिखरी हुई सूरत में आजाद हुआ। तो फिर ऐसे कानून और आइन की जरूरत पेश आई जिनसे हमारी रंगारंगी तहजीब बरकरार रहे, मुख्तलिफ खुशबू के संगम आबदार बना सके। इसलिए एक टीम वजीद पजीर हुई जिसने बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद दस्तूर हिंद यानी संविधान को तरतीब दिया, जिसमें हर एक मजहब के मानने वालों की आजादी और उसके हुकूक की रियायत की गई और वो उसूल, वो ज़ाबता और वो दफातर डाले गए कि फिर से एक मर्तबा मेरा वतन अजीज मुस्कुराने लगे, लहलहाने लगे। और 26 जनवरी सन 1950 को तारीख हिंद हमेशा याद रखेगी, जिस दिन बाबा साहेब आम्बेडकर की सरपरस्ती में रहकर मुख्तलिफ मजहब के रहनुमाओं ने मिलकर दस्तूर हिंद को तरतीब दिया और फिर से एक बार हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का एक बेहतरीन ख्वाब देखा। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में वतन अजीज के दस्तूर को तार तार करने की पूरी तरह कोशिशें हो रही है। अमनो आस्ती के दुश्मन अलग अलग नजरिए से तफर्रुका डालने की कोशिशें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उनको खत्म करके आपस में नफरतों का रगों में जहर खोल दे। पर वो सुन ले, ये अमनो आस्ती के दुश्मन अगर हिंदुस्तान की सुबह मौज़िन की अजान से होती है तो शाम पंडित की पूजा और आरती से होती है, अगर हिंदुस्तान की सुबह गुरुद्वारे की बांग से होती है तो शाम चर्च के घंटों से होती है। और यही कल्चर सदियों से मेरे हिंदुस्तान का चला रहा है। और तू तो क्या, किसी माँ के जन्म में यह ताकत नहीं कि मेरे हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। इसलिए हजरात, हमें चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर ये अज़्म करें कि हालात के थपेड़े कितने ही सख्त क्यों ना हो, मुसीबतों के पहाड़ कितने ही बुलंद क्यों ना हो, तकलीफें कदम बकदम क्यों ना हो, लेकिन हरगिज हम अपने वतन के दस्तूर को, संविधान को आज न आने देंगे। आज का दिन 26 जनवरी का दिन है जो यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। हम उसे हमेशा याद रखेंगे और हमेशा बाबा साहेब आम्बेडकर के टीम के एहसानमंद रहेंगे इस दस्तूर के बनाने की वजह से। खिलौना समझ कर न बर्बाद करना,
खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। वो शजरे आजादी जिसे खून देकर सींचा, वो शजरे आजादी जिसे खून देकर सींचा, तो फल उसके पकने को आए हैं। फिरंगी फौजों में हुर्मत के फतवे, फिरंगी फौजों में हुर्मत के फतवे, सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। जख्म खाएंगे मुस्कुराएंगे, जख्म खाएंगे मुस्कुराएंगे, और इंकलाब फिर से लाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बेहतरीन अंदाज में तकरीर को पेश किया, जिसमें यह समझाया कि संविधान और भारत देश की कैसे हमें संविधान की हिफाजत करनी है, जिससे हमारे भारत देश की हिफाजत हो। बहरहाल अभी हमारे कुछ मज़ीद मेहमान आए हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी मुश्ताक साहब सुमरा गोविंदपरा से तशरीफ़ लाए हैं, हाजी हनीफ साहब सुमरा, हाजी अब्दुल्ला कबल, फैसल सलपड़ाया, अब्दुल कलाम सर करूड़, हाजी मोहम्मद हुसैन गोविंदपरा, शमान सेठ पठान फिश वाले, मौलाना आदम साहब खुमार, नरसी भाई प्रगति वेल्डिंग वाले, हाफिज़ यूसुफ साहब मत्था, हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब खुमार। हम इन तमाम का और मांगरोल शहर मांगरोल और कुर्ब जवार से जो वाली हजरात और हमारे मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ लाए हैं, हम इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, संविधान के प्रति जो हमने रुख देखा अगले कार्यक्रम में, संविधान भारत देश की आत्मा है, रूह है, और उस संविधान के बल पे ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन जितने भी रहते हैं, वो अपने अपने धर्म, अपने अपने संस्कृति को मानते हुए इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का दर्शन यदि कहीं होता है तो पूरे विश्व में एक ही देश मात्र है, और वो भारत देश है। और ये हमारे संविधान की देन है, और ये संविधान भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, और आज उसी पेड़ के नीचे हम सभी लोग अपनी जिंदगी जी रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ये 21वीं सदी की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है, और आज इस देश के कुछ कोने के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जैसी बातें हो रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। हमें समझना होगा कि देश की एकता और अखंडता को हम कैसे बचाए रखें, और इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उसको हम कैसे आगे ले जा सके। यदि हमने इस पे काम नहीं किया तो याद रखना मेरे दोस्तों, माताओं और बहनों, शायद हमें ऐसी ऐसी चीखें सुनने को मिलेगी जो हमारी आंखें रोने के लिए आंसू भी नहीं निकाल पाएगी, आंसू भी सूख जाएंगे। यदि आज हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन एकता का नारा नहीं दिखाया, तब कहीं जाके ये दिन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी भाईजान ने अपना वक्तव्य दिया है उसको अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे। अगले परफॉर्मेंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला परफॉर्मेंस जो है वो है action song on hijab is my pride. The students, girls are from the English medium, standard 7th, 8th and 9th. I just welcome them, and please put your hands together to encourage them. Thank you so much. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Allah chose. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve.
pulled into proof for what I had to say. Covering myself will hide my charm away. Confused was my mind in what I shouldn't do. I have been so sad, my feelings never went through. My heart got that peace that showed me light, the light of my hijab, which made my spirit bright. Without my hijab, I feel insecure. Deep within my soul I feel peace and pure. This is my hijab, I will never remove. This is my hijab, I will never remove. I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. My dear sisters, hijab is the cure. Wisdom lies beneath it, I know that for sure. Gift yourself with guidance and never regret. Accepting it won't be getting all respect. All around is evil, that wants to prevail. Sticking to Islam, we won't let good fail. Let's embrace hijab and await our reward. It is for Allah, the one and only Lord. That wants to prevail, sticking to Islam, we won't let good fail. Let's embrace hijab and await our reward. It is for Allah, the one and only Lord. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. Hijab is my way, the way that Allah chose. अगला परफॉर्मेंस जो होने जा रहा है, which is based on the generation gap. So here I would like to inform you that what is generation gap exactly is. The generation gap, the ancient people, I can say that our father, our mother, our grandfather, grandmother, the paternal uncle, the paternal mom, पुरानी विचारधारा वाले लोग, and the recent people, those who are living their life in the present time period, वर्तमान के समय में जो जिंदगी जी रहे, पहले के जमाने के लोग, उनकी विचारधारा और वर्तमान समय के जनरेशन, उनकी विचारधारा में टकराव होता है. इट इज कॉल्ड द जनरेशन गैप. वो लोग अपने विचार, अपनी पुरानी परंपरा को बताने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं कि तुम इस बात को मानो, और आज की जनरेशन जो है वो ये कहती है कि वो जमाना बीत गया. और इस बात को लेकर के जो तकरार होती है, जो मतभेद होता है, जो मनभेद होता है, इसको जनरेशन गैप कहा जाता है. और ये गैप तो आता जाता रहता है. सदियां बीत गई, युग परिवर्तन हो गए, मानव संस्कृति का बड़ा विकास हो गया, सभ्य समाज खड़े हो गए, ढेर सारी डिग्रियों ने सभ्य समाज की ओर तहलका मचा दिया, लेकिन ये जनरेशन गैप गया नहीं. एजुकेटेड हम अपने आप को कह कैसे सकते हैं? हमें अपने आप को समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता कि धर्म को बदलो, संस्कृति को बदलो, संस्कार को बदलो, लेकिन समय का जो प्रवाह चल रहा है, यदि उसके विपरीत हमने चलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को पिछड़ा हुआ पाना पड़ेगा. परिवर्तन तो संसार का नियम है भाई. बच्चा छोटा होता है, अपनी मां की कुख से जन्म लेता है तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो जनरेशन गैप आ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, विचार बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे, परिवर्तन उसमें आ जाएगा. तो हमने जब जन्म लिया ये धरती पे, तो हमारे खुद के अंदर इतना परिवर्तन हो रहा है, और हम ये दूसरा परिवर्तन जो है उसको मानने को तैयार नहीं है, स्वीकारने को तैयार नहीं है.
लेकिन यदि हम उसको मानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को, ये जो दुनिया 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रही है, उसके पीछे हम पाएंगे, ये जरूर है। धर्म को मानना है, संस्कृति को मानना है, संस्कार को अपनाए रखना है, लेकिन उसके साथ हमें इस प्रवाह के साथ बढ़ना है। तो कैसे हम बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना है। तो अगला जो इवेंट होने जा रहा है वो बेस्ड है जनरेशन गैप के ऊपर। और दूसरी बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि पहले जो हम अपनी जिंदगी जीते थे, हमारे बुजुर्गों को हम पूछे तो साइकिल में दुकान पे जाते थे। आज मैं यहाँ आए हुए माता पिताओं को पूछना चाहता हूँ, भैया आप लोग चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटी की सेहत अच्छी रहे? तो बोलेंगे हाँ सर हम चाहते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, आप लोग खेत में, दुकान में मजदूरी करते हो, जब छोटे थे तो साइकिल पे जाते थे, चलते हुए जाते थे। आज आपके बेटे और बेटी को स्कूटी और एक्टिवा देते हो कि नहीं? मुझे बताओ, देते हो कि नहीं? भैया आप लोग आपके बेटे और बेटी की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। आप लोग 18-19 साल की उम्र तक उसका शरीर का विकास होता है, ये विज्ञान कहता है। और 18-19 साल की उम्र से पहले आप लोग पड़ोस में दिखावा करना है, पड़ोस वाले को बताना है, मारी दीकरी दीकरो स्कूटी में एक्टिवा में स्कूले जाओ। हाँ, पड़ोस वाला देखे, रिश्तेदारों को बताए ना, मारो छोकरा ने मैं लई दीधुं बुलेट 2 लाख रुपया 30 एवरेज आपे, 100 રૂપિયાનું છોકરો પેટ્રોલ બાળી નાખે, ધોરણ 10 માં ભણે અને ગર્વ અનુભવે, અને પછી એમ કે યાર છોકરો છે ખોટા રસ્તે વયો ગયો। એ સાહેબ ભૂલે જાય, છોકરો બીમાર પડે, એ સાહેબ પડે, वो बीमार होगा और वो गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि गलत उम्र में आपने उसके हाथ में वो सुविधाएं थमा दी है जो उसकी बर्बादी का रास्ता खुद तय करती है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सेहत का ख्याल रखने के लिए, बाद में और भी प्रोग्राम बाकी है तो कुछ न कुछ बोलता रहूंगा, अगले प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाए। और आप लोग तालियां क्यों नहीं बजाती है बेटियां? हाँ, ये Good morning students. Now take your seats. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने को बोला था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आप अपने इस लेख में लिखो वो सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? Yes, तो आपका समय शुरू होता है। अब नाउ स्टार्ट राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर। तभी मैंने बोला तो सर बोल रहे हैं कि 3 बजे कर लेंगे वो आपको। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टेस्ट आप सबने बहुत अच्छे से दिया होगा। इसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगा। May I come in, sir? Yes, come in. सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए मिस्टर राकेश, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। सर, बात ही कुछ ऐसी है। Now tell me, what's the matter? सर, मैंने आज 7th क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लिया था। ओके। इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया।
इसलिए मैं आपके पास चला आया। ऐसा क्या लिखा है प्रदीप ने टेस्ट में? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पे बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो रोने लगते, तभी मेरे दादा उनको गोद में उठाकर प्यार करते और वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती हैं और कहती हैं जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को समय पर खाना देती हैं और ना दवा दारू। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनसे बात करूँगा या उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप कक्षा 7। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। यस सर। अजय बेटा 7th क्लास में से प्रदीप को बुला कर लाओ। यस सर। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कम ऑन बेटा, मेरे पास आओ। प्रदीप बेटा, जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज्यादा दिन अपने दादी दादा से दूर नहीं रहोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ो। मिस्टर राकेश, आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो कौन? हेलो सर, क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। क्या सर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। आइए आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है सर, आपने हमें बुलाया है? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया मैंने। जी कहिए क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करोगे,
क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में उससे बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात नहीं की। यह तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़े ही दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था ताकि वे हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सिर्फ इसलिए बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। यह तो बहुत ही गलत बात है सर। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हो। हर पीढ़ी के अंतराल के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरे समझ में नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपकी और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर कोई एक आधा स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया था मिस्टर बजाज। क्या मतलब? साफ साफ बताइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यह है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का जमाना था मिस्टर बजाज। आपके टाइम में टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधाएं चलन में आ चुकी थी। लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। मगर आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने आज बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा है। लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक जोड़ दिया। इसलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया मिस्टर बजाज। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा, मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पे बिठाकर मेला दिखाने ले जाया। आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपका बेटा एक बहुत ही होशियार और होनहार विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर बजाज। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहें दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की भांति होता है। जिस तरह का डाटा और बातें हम उसमें सेव करते जाएंगे वह उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हो वह ताउम्र उसके साथ रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। अगर कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने जाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बुरा हुआ शाम को घर लौटाए तो उसे बुरा नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं अपने माँ बाप से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है मिस्टर बजाज। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपने माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे प्रदीप का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं प्रदीप को उसके दादा दादी से मिलने और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं। आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं।
अब हम अपने आए हुए मेहमानान किराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी अदना सी दावत को कबूल करके आज के इस होने वाले प्रोग्राम को जीनत बख्शी। खुसूसन इसमें मौलाना मोहम्मद साहब कापा, हासम भाई हमाल फिश, ईसा भाई घमेरिया, इब्राहिम भाई बखाई, सब ये नगर पालिका सेवा सदन, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन घमेरिया, हाजी हनीफ भाई पटेल प्रमुख बैतुलमाल फंड मांगरोड़, हाजी मोहम्मद हुसैन जेठवा माजी प्रमुख, हाजी मोहम्मद हुसैन जेठवा जाला माजी प्रमुख नगर पालिका, हाजी अल्लाह रखा बेरा टिप टॉप वाले, यूनुस साहेब प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल मांगरोड़, हाजी दाऊद साहब जड़ा, हाफिज़ यूसुफ साहब मत्था, आरिफ भाई मेमन वेरावल वाले, मौलाना अनीस साहब करूर, और इसी के साथ साथ दूसरी नामी अनामी बहुत सारी शख्सियात हमारे माबेन मौजूद है। हम इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज जैसे मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें हम बहुत सारे ऐलानात फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए डालते हैं। आप इन ऐलानात पर तवज्जो देते हैं और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे किसी प्रोग्राम की खबर आपको सोशल मीडिया के ज़रिए दी जाएगी, तो आप ज़रूर उसको कबूल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। दूसरा ख़ास ऐलान ये है कि हमारे जामिया में एक और प्रोग्राम होने जा रहा है। 30 जनवरी आइंदा जुमेरात को इशा की नमाज के बाद 8:30 बजे मुसाबक़तुल कुरानिल करीम जामिया की वसी और अरीज़ मस्जिद में रखा गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत शेखुल कुर्रा फ़ख्र गुजरात कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब सांसरोदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला ने इनको इल्म क़िरात में काफ़ी महारत दी है। सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के ममालिक के बहुत सारे हिस्से, मिस्र है, शाम है, लबनान है, वहाँ पर जाकर भी इन्होंने कुरान करीम की खिदमत दी है। तो बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। आइंदा जुमेरात के दिन जामिया की मस्जिद में तलबा अजीज़ के दरमियान मुसाबका कंपटीशन होगा। इस रूह परवर मजलिस में आप खुद भी तशरीफ़ लाएंगे और अपने दोस्त अहबाब में भी इसकी दावत चलाएंगे। अब मैं दरमियान में हमारे शहर मांगरोल के मशहूर नात खां उबैदुल्लाह साहब जाडला को मदऊ करूँगा कि वो आपके सामने नातिया कलाम पेश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, हाज़िरीन जलसा और पर्दे में सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार ज़ोर से सलाम का जवाब दे दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सनशाइन के स्टेज से बहुत ही खूबसूरत पैगाम देता हूँ कौमी एकजुहती के बारे में। बहुत ही खूबसूरत मैसेज पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े। अगर मेरी बात समझ आ जाए, अगर मेरा आपको ये लगता है कि मैंने सच्ची बात कही, तो आप ताली से बताइएगा हमको। मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप का जो दिल दुखे संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। अगली कड़ी तुम्हारी है। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। मेरी बात में है, मेरी बात में है ये सच्चाई, ये झूठा मेरा उपदेश नहीं। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं।
इसके बाद क्या अशार, इस देश के लोगों के दिल में प्यार की गंगा बहती है, इस देश के लोगों के दिल में प्यार की गंगा बहती है। अरे सारी दुनिया मेरे भारत को सोने की चिड़िया कहती है, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। मेरा अशार बड़ा था लेकिन आपकी ताली कमजोर है। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया, यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया। अरे इस देश में आकर ख्वाजा ने हमें कुरान दिया। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। मेरी बात में है ये सच्चाई, ये झूठा मेरा उपदेश नहीं। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। ठेरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। ठेरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। यहाँ सनसाइन में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनको मुखातिब करते हुए मैं एक बात कहता हूँ कि तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म के नदी के किनारे सारे सूख गए। वक्त है अभी तुम्हारा, इन बच्चों को पढ़ाओ तुम। अरे तुम ना आगे बढ़ सके इनको तो बढ़ाओ तुम। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों। वक्त है अभी तुम्हारा, इन बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके इनको तो बढ़ाओ तुम। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अब एक अशार कि हर करम अपना करेंगे। पहले से लेकर आखिर तक सबकी ताली की आवाज सुनना चाहता हूं मैं। हर करम, बताइए उन नफरत वाली ताकतों को बताइए कि हम मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। एक आखिर में अशार, मेरी यहाँ माएँ और बहनें बैठी हुई है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बड़े इत्मीनान से और तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं उनके लिए दो अशार करके मैं अपने अशार का इख्तिताम करता हूँ कि जिनके नीचे जन्नत है उन पाँवों को मेरा सलाम। मीन माओ बहनों के लिए आप ताली बजाइए। जिनके नीचे जन्नत है उन पाँवों को मेरा सलाम, जिनके नीचे जन्नत है उन पाँवों को मेरा सलाम। आने वाली नस्लें नाज करेगी सदियों तक। मीन माओ बहनों से कह रहा हूँ, आने वाली नस्लें नाज करेगी सदियों तक। मांगरोल शहर की बहनों को माओ को मेरा सलाम, मांगरोल शहर की बहनों को माओ को मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती दाऊद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत लोगों के सामने मुझे कुछ पढ़ने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब अगला जो परफॉर्मेंस होने जा रहा है, which will be of the English medium student, Sunshine English medium standard 9 student Fahimuddin Fakira is going to perform the speech on 26 January, and he has prepared his speech in English. एक्ट में भी पार्टिसिपेट है, स्पीच में भी पार्टिसिपेट है, and he's a very active boy. Almost the students, those who are studying in this school, they are excited and they are so happy, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की प्रवृत्तियों में जब आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो एक विशेष शक्ति अपने आप में जागृत हो जाती है। और फहीमुद्दीन फकीरा जो है वो उसी में से एक
स्टूडेंट है हमारी संस्था का, जो ड्रामा के बाद अब फिर से 26 जनवरी पर अपने विचार पेश करने के लिए आपके सामने पेश हो रहे हैं। I just do welcome him from the bottom of my heart. Please put your hands together to welcome him. Thank you so much. Assalamu alaikum. A very good morning to all the excellencies present here. On this occasion of Republic Day, I wish you all of you a wonderful, prosperous and peaceful 2020. I am very excited to say something about our country on this reward occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January since 1950. Today, we all are here to celebrate 71st Republic Day of our nation. On 26 January 1950, the Constitution of India came into force. Our great Indian freedom fighters and Indian leaders such as Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Maulana Abul Kalam Azad, Chandrasekhar Azad, Tipu Sultan, etc. fought against the Britishers to make India a free country. The history of the Indian national movement would be incomplete without the role of Indian Muslims in it. The contribution of Ashfaqullah Khan, who conspired and looted the British treasury. Abdul Ghaffar Khan, a great nationalist who passed 45 years of his 95 years of life in jail for a freedom of India. In the revolt of 1857, Asghari Begum fought against the Britishers and who burned alive. It is estimated that more than 225 Muslim women gave their lives in this revolt. Muslims have contributed massively to the national movement. Umar Subhani, an industrialist and a millionaire of Bombay, who presented a blank check to Gandhiji for a Congress expenses and who ultimately gave their lives for a cause of independence. India is a free country. Republic means the supreme power of a people living in this country, and only public has right to elect their representative as the political leaders to lead the country in right direction. गणतंत्र का अर्थ है देश में सभी देशवासियों को समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। हमारे देश में सभी धर्मों को, संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। 26 जनवरी एक गौरवपूर्ण दिन है। डॉक्टर आम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में देश के संविधान का निर्माण किया है। इस निर्माण में कुल 22 समितियों का योगदान है। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री वेयर वी पीपल इलेक्ट अवर लीडर्स एज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एक्सेट्रा. Let's make our nation peaceful and developed country all over world. Wishing you all of you once again a very happy Republic Day and hoping that we will achieve our goals of a development and prosperity soon. Thank you and have a joyful day. हाँ, तो after hearing the speech of 26 January by Fahmuddin Fakira, तो अपनी क्या बात चल रही थी वो पहले वो मैंने बताया था। वो स्टूडेंट्स पहले आप बैठ जाओ, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, आप बैठ जाए तो यहाँ पर। और दूसरा मैं आप सभी लोगों को बताऊं, माता और बहनों को, सभी सज्जनों को, कि अभी 4-5 प्रोग्राम बाकी है और एक से एक बढ़िया है। तो मेहरबानी करके अपनी जगह पर बने रहिए और ये बच्चे जो अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं उनका हौसला कहीं टूट न जाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी देर तक आप बैठे हैं तो थोड़ा और वक्त यहाँ निकालिए और जो भी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं उनका हौसला यूं ही बना रहे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हर रोज इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं, साल में 1-2 बार होते हैं, साथ में मिलते हैं। और आप लोग से ये मेरे नंबर विनती है कि आप लोग बैठे रहेंगे। एंड स्टूडेंट्स दोज हु आर टॉकिंग ओवर हियर, ज्यादा बातें हो रही है यहाँ पर। कौन है स्टूडेंट्स ये? यू जस्ट प्लीज मेंटेन साइलेंस। मैं बता रहा था आप लोगों को कि आपके बच्चे जो है वो स्कूल पे आते हैं तो आप लोग अपने मन को मनाने के लिए बोलते हैं कि स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है, स्कूटी तो चाहिए, बच्चा 9th में आ गया, 10th में आ गया, होंडा चाहिए। आप लोग सोचिए 4-4, 5-5 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक साइकिल में जाते थे, आपको कुछ होता नहीं था। और आपका बच्चा गर्मी के मौसम में या बारिश में आता है 2-3 किलोमीटर साइकिल चलाने, तो उसको तकलीफ होती है। उसका शरीर बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा, ये विज्ञान भी बताता है। 18 साल की उम्र तक शरीर का विकास होता रहता है। उस वक्त पर आप उसके शरीर को बांध देते हो। और मुझे कोई ना मत कहना, मैं भी उसमें शामिल हूं, ज्यादातर लोग शामिल है, अपना दिखावा ज्यादा है। अब पड़ोसी का बच्चा चाहे प्लेन में जाए, हेलीकॉप्टर में जाए, वो उसको मुबारक है। मेरा बच्चा अभी 18 साल का नहीं हुआ है, वो साइकिल में जाएगा, चल के जाएगा। घर से आधा घंटा जल्दी निकलना पड़े तो मंजूर कर लेना, उसकी सेहत जीवन पर अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे बातें करते रहेंगे।
स्टेज पर छोटी छोटी बच्चियां जो तैयार हैं, उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार तालियां हो जाएं। थैंक यू। الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا، أطهر بدني بصلاة، بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نفسي بالصوم أروضها، وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجواب، بجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. والحج وقوف وطواف، حشر أصغر في الدنيا، لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. The song which was performed, it was by the students of 3rd, 4th and 5th, and it was based on the pillars of Islam.